Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudirahe Nashtakasha Vadrishu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Srimad Bhagavatam 46 paragraph, 45. 46. Okay. Evam bruvana utkritya Jatam rosha pradipitaha Taya sa nirmame tasmai Prityam kalanapo loparam Evam bruvana utkritya Jatam rosha pradipitaha Taya sa nirmame tasmai Krityam kalapanopamam Krityam kala anala upamam Evam bruvana utkritya Jatam rosha pradipitaha Taya sa nirmame tasmai Krityam kala anala upamam Evam bruvana utkritya Jatam rosha pradipitaha Taya sanirmame tasmai Krityam Evam bruvana utkritya Jatam rosha pradipitaha Tayasa nirmame tasmai Krityam kala analopamam Evam brahmana utkritya Jatara rosa pradipita Tayasane mame tasme Krityam kala nala upama Evam bruvana utkritya Jatam rosa pradipita Tayasa nirmame tasmai Tayasane mame tasme Krityam kala nala upama Evam bruvana utkritya Evam brahmana utkritya Jatara rosa pradipita Tayasane mame tasme Krityam kala nala upama Evam Das Bruvanaha speaking Durvasa Muni Utkritya uprooting Jatam a bunch of hair Rosha Pradipitaha being reddish because he was very angry
Taya, Taya, by that bunch of hair by that bunch of from his head, Saha, Durvasa Muni, Nirmame, created Tasmai to punish Maharaj Ambarisha, Krityam, a demon, Kala Anala Upama, appearing just like a blazing fire of devastation. Just like blazing fire on Devastation. As Durvasa Muni said this, his face became red with anger. Uprooting a bunch of hair from his head, he created a demon resembling the blazing fire of devastation to punish Maharaj Ambarisha. As Durvasa Muni said this, his face became red with anger. Uprooting a bunch of hair from his head, he created a demon resembling the blazing fire of devastation to punish Maharaj Ambarisha. Tam apatantim jalatim asihastam pada bhuvam vepayantim samudveksha na chachala padan ripaha. Taking a trident in his hand and making the surface of the earth tremble with its footsteps, the blazing creature came before Maharaj Ambarisha, but the king, upon seeing him, was not at all disturbed and did not move even slightly from his position. Purport by Srila Prabhupada. Narayana Upara Sarve Nat Utsachan Gati. 6.17. A pure devotee of Narayana is never afraid of any material danger. There are many examples of devotees such as Prahlad Maharaj, who was tortured by his father but was not at all afraid, although he was only 5 years old. Therefore, following the examples of Maharaj Ambarish Maharaj and Prahlad Maharaj, a devotee should learn how to tolerate all such awkward positions in this world. Devotees are often tortured by non-devotees, yet the pure devotee, depending fully on the mercy of the Supreme Personality of Godhead, is never disturbed by such inimical activities. As the fire in the forest immediately burns to ashes an angry snake, so by the previous order of the Supreme Personality, Godhead has disc the Sudarshana Chakra immediately burned to ashes the created demon to protect the Lord's devotee. बाबू मम्मी को पढ़ने देना हिंदी में सब कुछ. इस प्रकार दावाग्नि किसी क्रोध शब्द को तुरंत जला देती है, उसी प्रकार पहले से आदिष्ट भगवान के सुदर्शन चक्र ने भगवत भक्त की रक्षा करने के लिए उस सुदिष्ट कृत्य को जलाकर श्राप कर दिया. शुद्ध भक्त होने के कारण महाराज अम्बरीश ऐसे संकट में पड़कर भी न तो अपने स्थान से रंच भर कटे, न ही भगवान से अपनी रक्षा करने के लिए कोई प्रार्थना की. वे विचार में स्थित थे. यह स्पष्ट था कि वे अपने मन में भगवान का चिंतन मात्र कर रहे थे. भक्त कभी अपनी मृत्यु से डरता नहीं, क्योंकि वह सदैव भगवान का ध्यान अपने कर्तव्य के रूप में करता रहता है, किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं. लेकिन भगवान जानते हैं कि भक्त की रक्षा कैसे करनी चाहिए. जैसा कि प्रागदिष्टम शब्द से सूचित होता है, भगवान सब जानते थे. यद्यपि इसके पूर्व की कोई घटना घटे, उन्होंने महाराज अम्बरीश की रक्षा करने के लिए अपने चक्र को तैयार रखा था. भक्त को यह सुरक्षा भक्ति शुरू करने के दिन से ही प्रदान की जाती है. कौन्तेय प्रतिजानीहि जानानिहि न मे भक्त प्रणश्यति. भगवद गीता में यदि कोई व्यक्ति भक्ति शुरू करता है तो तुरंत ही भगवान उसकी रक्षा करने लगते हैं. इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी हुई है. अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि. रक्षा का कार्य तुरंत आरंभ हो जाता है. भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्त को सही मार्गदर्शन तथा सारी सुरक्षा प्रदान करते हैं. इस तरह भक्त शांति पूर्वक बिना किसी बाहरी उपद्रव के कृष्ण भावना में ठोस प्रगति करता है. सर्प कितना ही क्रुद्ध और काटने को तैयार क्यों न हो, किंतु जब उसे जंगल की प्रज्वलित अग्नि का सामना करना पड़ता है तो क्रुद्ध से क्रुद्ध सर्प भी असहाय बन जाता है. यद्यपि भक्त का शत्रु अत्यंत प्रबल भी हो
वह भक्ति की अग्नि के समक्ष क्रुद्ध सर्प जैसा बन जाता है। भक्ति की अग्नि। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्राग्दृष्टमृत्य रक्षायां पुरुषेण महात्मना। Bhagavatam 9th canto 4th chapter 48th verse. Pragdishtamritya rakshayam purushena mahatmana dadah krityam tam chakram krudahim iva pavakaha. As the fire in the forest immediately burned to ashes an angry snake, so by the previous order of the Supreme Personality Godhead, his disc, the Sudarshan Chakra, immediately burned to ashes the created demon to protect Lord's devotee. Krudahim iva pavakaha. सांप और अग्नि। जनरली जंगल में सांप होते हैं और सांप को सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जब फॉरेस्ट फायर आती है सबसे पहले मरता है। बिकॉज बाकी जानवर तो भाग लेते हैं, वो तो जमीन में ही रेंगता रहता है। तो जब आग लगती है जंगल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सांपों को, सांप मर जाते हैं। नेचर स्टडी। तो इसमें बोल रहे हैं कि इधर क्रोध था बहुत, इसको दुर्वासा मुनि को, बेमतलब का, लेकिन भक्ति की शक्ति आग की तरह जला दिया उसको। तो ये आग बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसमें सिंबॉलिकली भक्ति को भी एक आग की तरह प्रज्वलित किया है। इसलिए बोलते हैं जैसे साधना करते हैं वो आग की तरह, आग जलाने की तरफ कंपेयर किया जाता है। और जैसे ही इंद्रिय भोग में लगते हैं वो उसमें पानी डालने के बराबर माना जाता है। नहीं बोला जाता है, नहीं बोला जाता है हमेशा। साधना आपका आग लगाने की बात है। एक्चुअली इट इज ट्रू। भक्ति को सनाई सिंबॉलिज्म, फायर, फायर और डिवोशन सोर्स, आग जलाने के बराबर। और आपके दिल में आग है, आग जली है तो दूसरे के दिल में भी जला सकते हो। प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे जो महान आचार्य लोग हैं हम उनसे क्यों संग लेते हैं कि उनके दिल में भगवान को सेवा का आग बहुत प्रज्वलित है। और हमारा जो दिल है कोयले की जैसा ठंडा कोयला है, आग नहीं उसमें। तो साथ जाते हैं तो आग जल जाती है। कैसे आग जलाते हैं? आग जलाने हो तो एक जिस कोयले में आग है आप उसमें टच करो, उसमें भी आग जल जाएगी। ठीक है ना, समझ रहे नहीं? तो इसको आग जलाने के, इसलिए संग करना, सत्संग को इतना बारी क्यों बोला गया है वैल्यूबल। जो भी है दिल में भगवान का सेवा का आग होना चाहिए। तो उस आज से आप संग करोगे आपको भी सेवा का मन आ जाएगा। ठीक है ना, भक्ति वही है, सेवा का मन है, सेवा करना है। तो ये आग जलाने के बराबर है। और आग जलाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत तरह से, बहुत अच्छी तरह से समझाया गया। आग को बहुत शुद्ध माना गया है, इसलिए भगवान को दिया ये सब। आग अब ऑफर कर रहे हैं। फायर, अर्थ वाटर फायर एयर ईथ है, इसमें आग को बहुत शुद्ध माना है। आग से कुछ भी प्यूरिफाई हो जाता है। वो भी एक दूसरा चीज है, वो अलग तरह से आग है। हमारा जो दुनिया में हम तड़प रहे हैं उसको भी आग की तरह कंपेयर किया जाता है।
संसार दावनला लिधलोका, ये दुनिया आग जली हुई जोर की। तो आचार्य लोग इसको भी आग की तरह कंपेयर करते हैं। दुनिया में जो लोग तड़प रहे हैं वो भी आग की तरह। तरणय कारुण्य घना घनात्मा, और जो कृपा है वो बारिश के से कंपेयर किया। तो दिस फायर बहुत तरह से समझाया गया। इनफैक्ट लेकिन इस आग जलाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आग तमोगुण में नहीं जल सकती। इसका एग्जाम्पल फर्स्ट कैंटो में आता है। इनफैक्ट मैं इसका श्लोक को सुना था, मंदिर गया था, अभी मंदिर ब्रह्मचारी बनने का इच्छा था, तो एक भक्त ने मेरे को, उसमें तो ये नहीं होता था पेन ड्राइव ऐसा, सीडी दिया। तो ठीक है, मैंने सीडी चलाया, रूम में आके छोटा सा प्लेयर था, और वो लेक्चर 20 बार सुना। प्रॉपर जी बोलते हैं फायर, सो इट सेज फायर इज नीडेड। इट्स लाइक आपके पास लकड़ी है, धुआं है और आग है, 3 स्टेज हो गया। श्री राधा गोविंद की 3 स्टेज हो गया आपके पास। एक तो से लकड़ी हो गया, जंगल से जाके आप लकड़ी लेके आते हैं। फिर दूसरा स्टेज, लकड़ी से आप क्या करते हैं, धुआं, लकड़ी को जलाने लगते हैं, शुरू में धुआं आता है, दूसरा स्टेज। और तीसरा स्टेज आग। अब जैसे भगवान को अभी आपको दिया लगाना है, कुछ भी करना है, आपको आग चाहिए। धुएं से नहीं सेवा कर सकते, लकड़ी से नहीं सेवा कर सकते, ठीक है ना। जैसे अभी किचन में खाना बनाना है, आप लकड़ी का क्या करोगे, धुएं का क्या करोगे, आपको आग चाहिए। तो भगवान की पूजा करने के लिए भी आपको आग चाहिए, लकड़ी से कुछ फायदा नहीं होगा। और भगवान के लिए आपको भोजन बनाना है, भोग के लिए, उसके लिए भी आपको आग चाहिए। किचन में धुएं से क्या करोगे। लेकिन इसी तरह लकड़ी को तमोगुण से कंपेयर किया गया और धुएं को रजोगुण से, इस सिंबॉलिज्म, और आग को सत्वगुण से। तो भगवान की सेवा के लिए सत्वगुण चाहिए। इसलिए ब्राह्मण दीक्षा का क्यों नियम बना है, इसलिए कि उसमें सत्वगुण का आभास, नियम उसके अनुसार है, आप कैसे इंप्लीमेंट करें। सत्वगुण का आभास गुरु चेक करता है, फिर बोलता है ठीक है। मेन चीज गुरु क्या चेक करता है, इसको सत्वगुण आए नहीं आए, कुछ सत्वगुण आना चाहिए, अब ये भगवान का सेवा कर सकते हैं। ठीक है, हरि नाम तो जाप कर रहा है, लेकिन अभी सत्वगुण नहीं। सत्वगुण आता फिर बोलता चल अब तू ब्राह्मण दीक्षा ले ले। समझ रहे ना, मेन प्रिंसिपल यही है। अब इम्प्लीमेंटेशन तरह तरह से होता है, क्योंकि सत्वगुण में भगवान का सेवा हो सकता है, रजोगुण में नहीं हो सकता, तमोगुण में भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये चीज ठीक है, समझ रहे। तो सत्वगुण में आपका भगवान का सेवा होता है। तो इसीलिए अगर आप भगवान को सेवा करना है, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कृष्ण की सुरक्षा तो जिस दिन से आपने हरि नाम का जाप शुरू किया, शुरू हो जाती है। लेकिन ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जितना आप भगवान की शरण में जाएंगे उतना सुरक्षा। अब ऐसा नहीं है भाई हमारे पास जो सुदर्शन चक्र रखा है, क्यों नहीं रखा भाई। आप अम्बरीश महाराज को तो भगवान ने तो सुदर्शन दिया था, आपको क्यों नहीं दिया, हमारे को क्यों नहीं दिया। द रीजन है कितना लेवल आपका सरेंडर है, ठीक है। आपको सुदर्शन चक्र नहीं मिलेगा, कुछ तो है सुरक्षा, ऐसा नहीं सुरक्षा नहीं है। कनिष्ठ भक्त को भी कुछ सुरक्षा रहती है, ये कि जो सेवा उसने करी है वो कभी नष्ट नहीं होने वाली, उसके पास रहेगी। लेकिन वो गिर सकता है, इंद्रिय भोग में दोबारा भाग सकता है। मध्यमाधिकारी को थोड़ा भगवान का ज्यादा दर्शन है। मध्यमाधिकारी वो जो भगवान की साधना से अभी सत्वगुण में आ गया, वो टेक्निकली उसको मध्यमाधिकारी बोलते हैं, ठीक है। उसको शास्त्र का ज्ञान समझ आ गया है, मन अभी शुद्ध हो गया, उसका सत्वगुण का आभास हो रहा है, वो मध्यमाधिकारी। और उत्तमाधिकारी वो जो कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर लिया, ठीक है ना। ये 3 स्टेज हो गया। तो तीनों में सेवा भगवान स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं करते, लेकिन उनको आनंद नहीं आता। जो कृष्ण प्रेम में भगवान को सेवा करता है, वो सेवा भगवान को बहुत आनंद है। जो सत्वगुण में करता है वो भी भगवान स्वीकार कर लेते, लेकिन तमोगुण रजोगुण में जो सेवा है, जैसे एक जली चपाती की तरह है, ठीक है।
एम्बेरस नहीं करना चाहिए। एक बार क्या हुआ था, डिवोटी लोग ट्रेन में जा रहे थे, तो सब लोग भूखे थे, जैसे ट्रैवल अभी तो उसमें अभी तो नहीं है इस्कॉन के इतने मंदिर, हम ट्रैवल करते हैं, फ़ोन कर देते हैं भाई हमारा इस प्लेटफॉर्म में इस टाइम आएंगे, किसी भक्त से थोड़ा प्रसाद भेज देना। आप कभी जाते हो और भक्त लोग मदद भी करते हैं। पहले तो सोचे हैं एक दो मंदिर थे, अब ट्रैवल कर रहे थे तो डिवोटीज लोग क्या किया, बाहर से कुछ नहीं खाने को था तो कुछ खरीद के ले आए थे कुछ खाने, तो फिर कुछ वो पिक्चर लगा के कुछ खड़ शुरू प्रभु दे दो। ऐसे भगवान को एम्बेरस नहीं करो, ये भगवान को आपको नैवेद्य करने लायक नहीं है, बाहर बना हुआ खाना है, नैवेद्य नहीं कर पाए। तो सिमिलरली एम्बेरस जब हम तमोगुण भगवान को सेवा करते हैं वो इतना एक्सेप्टेबल नहीं रहता, इतना प्रिय नहीं होता। तो सिमिलरली जैसे सुरक्षा है, भाई बोल दिया प्रभुपाद जी ने सुरक्षा है कनिष्ठ में भी है, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं ऑर्डनरी मर्सी चाहिए, ज्यादा मर्सी चाहिए, तो भक्त को भगवान का कृपा ज्यादा चाहिए, ये हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, एक लेवल का तो कृपा है, इसकी वजह से हम भगवान का सेवा मेंटेन कर पा रहे हैं, ये भी आसान नहीं है। जो दिन के बाद दिन भगवान का सेवा मेंटेन करता है उसको भगवान का कृपा है, ये तो आप देख सकते हो। हर दिन जाप कर रहा है, हर दिन भगवान का सेवा कर रहा है, कृपा तो मिला है, लेकिन और कृपा चाहिए। तो आगे देखने का हमेशा, पीछे नहीं देखने का। पीछे देख के तो एक संतुष्टि होनी चाहिए, देखो भाई क्या था मैं क्या बन गया बस, लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए। आगे देखने, ओ बहुत इतना आगे जाना है। इसलिए संघ में जब रहते हैं भक्तों के दिखते हैं, अरे वो तो बहुत प्रगति करना है, मेरे को भी एक अच्छा भक्त बनने का अच्छा। तो उसके लिए हमको तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, सत्वगुण से फिर भक्ति में जाना पड़ता है। तो आग को इधर भी बहुत अच्छा कंपैरिजन किया गया है, सत्वगुण आग की तरह है। सत्वगुण की आग में आग से कंपेयर किया जाता है, रजोगुण को धुआं और तमोगुण को लकड़ी। ये बहुत अच्छा है, पढ़ा है सिंबोलिज्म, फर्स्ट कैंटो में आता है। श्लोक कभी याद नहीं आ रहा मेरे को, बहुत अच्छा श्लोक है। सो दिस वे आग है, तो दिस इज वेरी नाइस कंपैरिजन ऑफ फायर। तो फायर और डिवोशन सर्विस, इस आग का एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी हुआ था। चैतन्य महाप्रभु हरि नाम कर रहे थे तो चांद काजी ने अपने आदमी भेजे थे उसको रोको, क्योंकि थोड़ा कंप्लेन आई थी भाई ये लोग दिन रात हरि नाम करते हैं, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ठीक है, कौन डिस्टर्ब हो रहे थे? ब्राह्मण लोग, तो उनका धंधा बंद हो गया था। चैतन्य महाप्रभु ने बोला था हरि नाम करो बस, इतना करने से वैकुंठ धाम चले जाओगे। और जो वहाँ ये भटरू थे ब्राह्मण लोग, तो उनका तो धंधा बंद ठप हो गया, तो तो कर्मकांड करते हैं। कर्म चैतन्य हरि नाम करो बस, लोग खुशी से हरि नाम करो खुश। तो उनको तो अभी पेट में लात मार दी किसी ने तो गुस्सा आएगा। ठीक है, असली ब्राह्मण होते तो कभी भी ऐसे गुस्सा नहीं होते, खुश होते। तो वो जाके इतनी हिम्मत देखो, जाके चांद काजी को कंप्लेन किया, इस किसी तरह बंद करो इसको। क्या करो? किसी तरह इसको बंद करो, हरि नाम को बंद करो। अलग अलग स्टेज है, कुछ लोग को जब हरि नाम होता है तो बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद आता है। वो तो स्टेज है जब आदमी कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लिया। कुछ लोग को दवाई की तरह लगता है हरि नाम, कुछ लोग को दवाई नहीं, एटलीस्ट साधना नहीं कर पाते, अच्छा है। जैसे जनरली लोग हैं फेस्टिवल में आते हैं बस, उसके आगे नहीं जा सकते। बहुत लोग हर दिन साधना करना असंभव होना, कर नहीं सकते। जनरली मंदिर में ऐसे लोग को नहीं अलाउ करना चाहिए। मंदिर में मतलब साधना कर सकते, कांग्रेगेशन में बहुत लोग होते हैं, मंदिर नहीं आ सकते, तो बोलो हर दिन और नहीं हो सकता, एक लेवल। और उसके ऊपर अच्छा लगता है, तो भक्त हैं, कनिष्ठ भक्त कोई मंदिर आता है, अच्छा प्रोग्राम अच्छा। ऐसा नहीं है भक्त नहीं, एक लेवल है। और एक लेवल होता है उसको चिड़चिड़ा जाता है, तो इरिटेशन हो जाता है, हरिनाम हो रहा है उसको मतलब गुस्सा आने लगता है। 4 लेवल हो गए। पहला लेवल, जैसे ही कृष्ण का कीर्तन हो रहा है वो आनंद के सागर में चला जाता है, ये पहला लेवल। दूसरा लेवल, साधना स्वीकार कर लेता है, उसको साधना कर सकता है। साधना करना आसान नहीं है। आप कितना लोग हैं, हम फिर बुलाते हैं संडे को, एक प्रोग्राम में आए फिर नहीं आते, इंटरेस्ट नहीं आता। तो
उतना उतना लेवल में नहीं जाना चाहते, ठीक है थोड़ा है। हम ये नहीं बोल रहे भक्त नहीं है, ये वो सोचते हैं हम ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, भक्त भक्त है लेकिन एक लेवल का। थर्ड लेवल वो साधना स्वीकार करता है, तो उसको एक्चुअली क्या है, दीक्षा में भी 4:30 बजे से कमिटमेंट होता है। एक्चुअली 4:30 बजे 8:30 बजे कमिटमेंट है, घर में भी हो तो करना पड़ता है उसको, सुबह उठ के। देन उसके बाद तीसरा लेवल अच्छा है, फेस्टिवल में आएगा, हाँ बहुत अच्छा है, सब कुछ है, यात्रा है बहुत अच्छा है, लेकिन आगे नहीं जाना सकता, कभी नहीं जा सकता, उसके लिए बहुत जन्म लगेंगे उसको। और चौथा लेवल एक सबसे भयंकर रहता है, इसके नीचे उसको अपराध शुरू हो जाते हैं, भक्त लोगों से द्वेष आता है, गुस्सा आता है और चिड़चिड़ा बन जाता है। हरिनाम हो रहा है नहीं सुनने का, मेरे क्लास हो रहा है नहीं सुनना, मैं नहीं सुन सकता, भगवत का क्लास हो रहा है नहीं सुन सकता। 4 लेवल आपका सोच लीजिए। तो सिमिलरली आपका धुआं, जब आप हाँ तो चांद काजी, ये जो ब्राह्मण लोग हैं इनकी सिचुएशन सोच लीजिए। चैतन्य महाप्रभु तो हरिनाम कर रहे हैं, ठीक है, इनको चिड़चिड़ा जा रहा है और ये जाके कंप्लेन कर दी। सोचिए जैसे इधर भी आपका दुर्वासा मुनि है, अम्बरीश महाराज क्या गलत कर रहे हैं, वो तो अपना काम कर रहा है, राजा है, अपना काम कर रहा है, और ये चिड़चिड़ा उसे द्वेष बना के बैठ गया। तो एनीवे दिस इज नेचर ऑफ द लिविंग एंटिटी। इसलिए मंदिर को आग की तरह बोला जाता है, मंदिर में भी रहते हैं आग की तरह, थोड़ा सा केयरलेसनेस जल जाता है। भक्तों का संग में रहना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि भक्तों के संग में रहने में बहुत कुछ कर सकता है आदमी, उसका सेवा रहता है, भगवान का दर्शन मिलता है, तरह तरह की चीज़ होता है, लेकिन थोड़ा केयरलेस हो जल जाता है आग की तरह। फायदा बहुत हो सकता है, जैसे आग से आप बहुत अच्छा खाना बना सकते हो भगवान के, अपने को जला भी सकते हो। किचन में सब लोग नहीं जाते, क्यों? जल जाते। एक बार क्या हुआ था, एक डिवोटी ने किचन में जाके क्या किया, जो प्रसाद था भोग के ऊपर रख दिया। तो प्रभुपाद जी उस समय घुसे किचन में, बोले देखो ऐसा है, भगवान का भोग लगा रहे, बहुत फायदा है, लेकिन ये सब करोगे ना भोग को प्रसाद के, आप समझ रहे, आप जैसे भगवान को ऑफर किया तो अलग अलग रखने नहीं रखते, छूने नहीं रखते, ऐसा उल्टा करोगे तब आग की तरह सब नष्ट हो जाएगा। भगवान की सेवा बहुत ध्यान से करना होता है। एक्चुअली जो डीटी वर्शिप बहुत ध्यान से करना पड़ता है। थोड़ा गलती हो, जैसे आप सपोज प्रभुपाद जी बोलते थे पुराना गार्लैंड भगवान को दे दें, ठीक है दे सकते है ना। कभी कभी होता है गार्लैंड पुराना जाता है, पुजारी बहुत दुखी जाता है, मैं इसको कैसे ऑफर करूँगा, होता है कभी कभी फूल वाले पुरानी गार्लैंड दे देते हैं हमको, और हमको ऑफरिंग में फिर मुश्किल हो जाता है, कैसे ऑफर करो। तो प्रभुपाद जी डाल सकते हो, अरे कौन देख रहा है, ठीक है, लेकिन भक्ति नष्ट हो जाती है, भगवान। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये अग्नि का बहुत अच्छा कंपेयर किया गया है। तो दुर्वासा मुनि एक सांप की तरह हो गए। अरे भाई अम्बरीश महाराज क्या कर रहे, क्या खोट है भाई, राजा है, अपना सेवा कर रहा है, भगवान अपना एकादशी का व्रत किया बहुत उससे पूरा साल, और भगवान का पूजा कर रहा है, और इधर दुर्वासा मुनि, मतलब बहुत मुश्किल है ये समझना कि उसको इतना गुस्सा क्यों है। या ये हो सकता है, आई थिंक इसके कोई लोग मजाक करते हैं कि जो आदमी पैसा कमाता है अपना मेहनत से, उसको पैसे से घमंड नहीं आता। जिसके पास पैसे 2 तरीके से आता है, या तो घूस से, या उसको जायदाद जब अपने पिताजी की मिलती है उसको घमंड आ जाता है, उसको पैसे का वैल्यू मालूम नहीं, फ्री मिल रहा है ना। ये बहुत मुश्किल है ये समझना, इसको इतना घमंड क्या होता। दुर्वासा मुनि तप किया और तब से उनको बहुत शक्ति मिला, उसका शक्ति बहुत असीम, करीब करीब इम्पॉसिबल है इतना शक्ति पाना। दुर्वासा मुनि तो मतलब कुछ भी वरदान दे सकते हैं, कोई भी शाप दे सकते हैं, सब पुराण में अंदर बाहर जाते रहते हैं, लेकिन भक्त के सामने गिर गए, कुछ भी नहीं रहे। जैसे शुक्राचार्य भी बहुत शक्तिशाली हैं,
लेकिन उनको अपने ही शिष्य बलि महाराज ने हरा दिया। करेक्ट? वो भगवान को सुख कर पाए, वो नहीं कर पाए। तो बोला इसका भी मुश्किल है, सब समझने में मुश्किल लगता है, इतना बड़ा संत और ऐसी हरकत। लेकिन कभी कभी कृष्णा क्रिएट्स सच सिचुएशंस टू शो डिवोटी इज सो स्पेशल। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम केवल शांत। ये तीन चीजें, भुक्ति, जो लोग भोग के पीछे भागते हैं हमेशा अशांत रहते हैं, डेफिनेटली, कोई डाउट नहीं। मुक्ति, जो लोग मोक्ष के पीछे भागते हैं वो भी अशांत रहते हैं। करेक्ट? अशांत रहते हैं। सिद्धि, कुछ लोग सिद्धि के पीछे भागते हैं, वो भी अशांत है। ये सिद्धि का केस हो गया, जिसको सिद्धि है दुर्वासा मुनि को, लेकिन अशांत। देख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं थी। और आप सोचिए कि इतना डिस्टरबेंस कि वो उसको मारना चाह रहा है। सोचिए, आप देखिए, लिमिट देखिए। अम्बरीश महाराज ने कुछ भी नहीं किया और उसको मृत्यु दंड देना चाह रहा है। समझ भी नहीं आ सकता कि आदमी ऐसा पागल हो सकता है। वो अपना काम कर रहा है भाई। मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम केवल अशांत। पिछली बारी भी स्टडी कर रहे थे, अम्बरीश महाराज का पोजीशन है, उसको इतना मुश्किल सिचुएशन हो गया, जबकि उसने कुछ किया नहीं, उसका कोई गलती नहीं था, तभी भगवान ने उसको सुरक्षा दिया। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कौरव लोग गलती किए थे, पांडव कोई गलती नहीं की। अगर पांडव लोग गलत किए होते तो भगवान का सुरक्षा नहीं होता, कोई सुरक्षा नहीं होता। आप देख सकते हैं, सुरक्षा है। अम्बरीश महाराज ने कोई गलती नहीं किया, जिससे पूर्ण सुरक्षा था भगवान का। कौन थे प्रतिजानी नवे भक्ता, वो अपने एटिकेट के अंदर बंधा हुआ था। उसका एटिकेट है, ब्राह्मण, वो भी अपने अस्त्र उठा सकता था, वो भी अपने सैनिकों को बोल सकता तो मारे इसको। करेक्ट? नहीं, वो अपने एटिकेट के अंदर था। उसने कभी भी दुर्वासा मुनि का खोट नहीं देखा। बोला वो मेरा काम नहीं, मेरा काम है अपने अंदर देखने का, मेरी कितनी गलती है। ठीक है? तो वो ये देख रहा था, हो सकता है मेरे से कुछ गलती हो गई है, मैं तो पानी पिया, मैं तो थोड़ा डाउट था क्या करें, हो सकता है मेरे से गलती हो गई। तो वो तो हमेशा भगवान के स्मरण में रहता था। सवई मना कृष्ण पदार बिंदयो, पहले ही लिखा गया। तो भगवान के स्मरण में ध्यान से था। और इधर दुर्वासा मुनि है, उसने तो राक्षस बना के भेज दिया, तो सोचा गलती हो गई मेरे से, तो भगवान की शरण में चला गया। आपकी जो इच्छा भगवान, गलती हुई है, मेरे को दंड मिल सकता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। और उधर दुर्वासा मुनि को सुदर्शन चक्र का ने उसका हत्या, सुदर्शन चक्र ने पहले दानव को मारा, फिर दुर्वासा मुनि को पीछे पड़ा। ठीक है? तो इस तरह आप समझ सकते हैं ये लीला में। तो ये जो अग्नि है, हमारा आज फोकस था अग्नि पे। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में बता रहे थे, तो उन्होंने कंप्लेन किया था। तो जब उन्होंने अपने सोल्जर्स भेजे, भाई इसका हरि नाम रोको, तो दाढ़ी में आए थे। तो जनरली लोग दाढ़ी बनाते हैं, तो उनकी दाढ़ी जल गई थी। तो उसमें लिखा जाता है कि उसने चांदका ने बाद में बताया था, मैं अपने लोग भेजता था आपके हरि नाम के, लेकिन जैसे ही वो अंदर आना चाहते थे तब दाढ़ी जल जाती। तो ये मूवमेंट जो है एक्चुअली हरि नाम का संकीर्तन का मूवमेंट। इनफैक्ट रात को नरसिम्हदेव भी आए थे चांदकाजी को मिलने उसके स्वप्न में, और उसको बोला था, देख आज तो मैं तेरे को छोड़ दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम पूरी छाती फाड़ दूंगा। और उसने चैतन्य महाप्रभु को खोल के दिखाया था, उसकी छाती में उनके नाखून के मार्क थे। करेक्ट? तो ये मोमेंट जो है चैतन्य महाप्रभु का, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, सुरक्षित है। कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कोई भी छूना चाहेगा जल जाएगा, लेकिन हमको शुद्ध रहना चाहिए, अपना पर्पस अपना फिक्स रखना चाहिए। किस पर्पस के लिए हम सेवा कर रहे हैं। यस, प्रभुपाद जी की इच्छा थी हर जगह मंदिर की स्थापना हो, पब्लिक आए, उनको प्रचार हो। मेनली हमारा फोकस है प्रचार करना, किसी भी तरह प्रचार हो, लोगों को भक्ति मिले, ये हमारा फोकस है। और नरसिम्हदेव इसको सुरक्षित करके रखे, ये हमेशा रहना चाहिए, डर नहीं रहना चाहिए।
अरे क्या होगा क्या होगा, मतलब ये विश्वास नहीं है भगवान की सुरक्षा में। भगवान की सुरक्षा है तो आदमी शांत रहे, खुश रहे। भगवान की सुरक्षा हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से किसी तरह लोगों को भगवत भक्ति देने का, और नरसिम्हदेव का इसमें सुरक्षा है। इसलिए हमारे देखिए इतने सारे अवतार है, लेकिन हमको नरसिम्हा अवतार पर फोकस है स्पेशल। अपार्ट फ्रॉम राधा कृष्णा, नरसिम्हा का आरती रखा गया सुबह भी शाम को, या प्रभुपाद जी ने साधना डिजाइन किया। नरसिम्हा क्यों रखा है? सुबह भी रखा है, शाम को भी रखा है, क्या ना, प्रार्थना। और ऑल्टर में हमेशा नरसिम्हदेव रहता है, क्यों? वो सोच लीजिए फायर, भक्ति का जो फायर, जैसे दुर्वासा मुनि जल गए, वो तो नरसिम्हदेव भी एक फायर को पर्सोनिफाइड हो गया। एक तो फायर आप इम्पर्सनल रूप में बोल सकते हैं, फायर और डिवोशनल सर्विस, उसको फायर को पर्सोनिफाई करे, वो नरसिम्हदेव की सुरक्षित है। ठीक है, तो ये फायर और डिवोशन सर्विस से हमारा दिल भी पवित्र होता है। जैसे नरसिम्हदेव को हम प्रार्थना करते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना करती, हम कुछ नहीं मांगते, वही प्रार्थना प्रहलाद महाराज बोलते मेरा दिल पवित्र कर दीजिए। तो हमारी प्रार्थना नरसिम्हदेव को रहती है अपना दिल पवित्र करने के लिए, और ये हमारी प्रार्थना रहनी चाहिए। वही फायर हमें पर्सनली, हमारा इस फायर से हमारा जो इंद्रिय भोग की इच्छा है वो सूख जानी चाहिए। जैसे अग्नि से क्या होता है, पानी सूख जाता है। और अगर हो सकता है तमोगुण में भी हैं तो, लेकिन भक्ति को नहीं छोड़ने का, कुछ भी होने में धीरे 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 वो ड्राई होने का, लकड़ी को फिर जलने का। इसलिए भक्ति के प्रोग्रेस में आदमी ग्रेजुअली ड्राई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भक्ति नहीं कर सकते, अभी ऐसा नहीं है कि हरि नाम नहीं करो, करो, लेकिन ग्रेजुअली तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण का आभास होना चाहिए। नहीं हो रहा है करो और करो, जब ऐसा नहीं। जैसे कोई डिवोटी था, प्रभुपाद जी को आया नहीं, मैं बहुत डिस्टर्ब, प्रभुपाद जी जब इंक्रीज कर दो, लेकिन जब तक शांत नहीं हो गए कैसे सेवा करोगे? जब तक आदमी का मन शांत नहीं होगा सेवा कैसे करेगा? ठीक है, तो जैसे जब तक धुआं होगा। और दूसरा चीज क्या है, एक और चीज फायर का था कि जब भी फायर होती है साथ में धुआं भी होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे अर्जुन सोच रहा था क्षत्रिय धर्म में तो बड़ा प्रॉब्लम है, इधर तो कभी कभी अपने रिश्तेदार मानने पड़ते हैं। ठीक है, प्रभु जी बोलते हैं हर धर्म में कुछ प्रॉब्लम रहती है, आग के साथ धुआं हमेशा रहता है। जैसे आप आग, कभी लकड़ी से आपने खाना बनाया तो जब, हाँ घर में, तो जब आप पत्थर अत्थर इधर उधर हिलाते हो उसमें कितना धुआं निकलता है, लकड़ी, हाँ जोर का धुआं निकलता है उसमें, हाँ जो भी है। तो जब आप उसमें खाना बना रहे हो धुआं निकलता है, अरे अरे धुआं हो गया तो भग गए। तो अर्जुन बोल रहा है भाई मैं तो क्षत्रिय का करना चाहता हूँ काम, लेकिन रिश्तेदारों को छूना नहीं, तो वो तो पार्ट ऑफ साथ आएगा, धुआं आएगा ही, तो किसी भी धर्म में आएगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वो तो हर में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को भी आता है, कभी कभी वैश्य को थोड़ा करना पड़ता है, ब्लैक मार्केट करना पड़ता है, नहीं तो चलता नहीं उसका काम। हमेशा कोई भी वैश्य थोड़ा अकाउंट छुपाएगा, वो तो अभी नहीं पुराण तक में लिखा, हमेशा से वैश्य अपना टैक्स से थोड़ा छुपाता है कभी कभी, और शूद्र भी कभी कभी चोरी करता है। तो साहब का चारों वर्ण में कुछ तो गड़बड़ है थोड़ा, परफेक्टली कोई नहीं कर सकता। आइडियल लोग बैठ के सोच सकते हैं, जो प्रैक्टिकल कर रहा है उसको मालूम है आइडियल नहीं हो सकता। कभी कभी लोग आते हैं और ये ऐसा नहीं है वो ऐसा, तो होगा ही, लेकिन करने में हमेशा 100% नहीं हो पाएगा, थोड़ा तो रहेगा ही। हर कोई भी क्षत्रिय धर्म करना चाह रहे हो जैसे अर्जुन, थोड़ा धुआं तो रहेगा ही। तो ये भी फायर एंड धुएं करते हैं जब हम प्रैक्टिकली अपना डिवोशन सर्विस करते हैं। हम तो सोसाइटी सिटी के अंदर है, जंगल में तो है नहीं, आइडियली नहीं हो सकता। हमको भी एडजस्ट, कोई बोलता है आप शुगर क्यों खाते हो, क्या करें जंगल में बैठेंगे क्या हो सकता है ठीक है, जागरी लगा के भी थोड़ा कर सकते हैं। तो ऐसा करके करते रहोगे लेकिन परफेक्ट कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम तो उग्र कर्म सिविलाइजेशन के पार्ट बन गए। अगर ठीक है जंगल में बैठ के भक्ति कर रहे हैं, बहुत कुछ और आइडियल हो सकता है, ठीक है ना। अब खाना खाते हैं उसमें वो लोग अरे ऑर्गेनिक होना चाहिए, ठीक है भाई कोशिश करेंगे, लेकिन हमेशा नहीं हो सकता, उसका दाम डबल रहता है। अब राइस, ऑर्गेनिक राइस लाओ, डबल रेट रहता है। तो करने में आप आइडियल बनाना चाहते हो करो, लेकिन कभी क्योंकि हम उग्र कर्म सिविलाइजेशन के पार्ट है, इट इज नॉट सो इजी, थोड़ा मुश्किल रहता ही है, हमेशा थोड़ा मुश्किल रहता है। So similarly, when we are offering devotion service, थोड़ा we should be little practical. आइडियल वो लोग होते हैं जो सेवा नहीं कर रहे, बहुत कुछ कमेंट मारते हैं ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, करो तो
It will not be so easy. There will be some. There will be some. Because we are part of Ugrikarma civilization. At the same time, also, वैदिक टाइम में क्या होता था, बचपन से गुरुकुल में लोग ट्रेन होते थे, तो बहुत संस्कार होते थे, बिहेवियर होता था, एटिकेट्स आर ट्रेन फ्रॉम चाइल्डहुड. तो आदमी का एवरीथिंग विल पर उसमें आप परफेक्टली सेटअप कर सकते हो. गाय है, दूध है, घी है, गोबर है, ये आपका केमिकल है ही नहीं, उसमें ऑर्गेनिक ही खाते थे लोग. इट्स परफेक्टली सेट. लोगों को भी आचरण परफेक्ट था, कैसे किसको बिहेव करना है, वर्णाश्रम में सब कुछ सिखाया जाता है, ट्रेनिंग है बचपन से. अभी क्या है, इट्स नॉट लाइक दैट. और ऐसा नहीं है कि लोग मूवमेंट में आते हैं, कुछ मंदिर में तो सिस्टम है, कुछ साल तक सेवा नहीं देते, उनका ट्रेनिंग होता है. तो मायापुर में 6 महीने के 1 साल का ट्रेनिंग है, करेक्ट. बहुत बड़ा मंदिर में ट्रेनिंग का सिस्टम है. लेकिन जनरल छोटा मंदिर में ऐसा संभव नहीं हो पाता. वो जैसे ही आता है सेवा भी शुरू होती है, साथ साथ थोड़ा ट्रेनिंग भी चल रहा है, तो ऐसे ही चलता है. तो उसमें धीरे धीरे सीख रहा है, तो वो परफेक्टली तो करेगा नहीं, लेकिन उसका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए. इंटेंशन शुड बी सिंसियर. जस्ट लाइक प्रभुपाद जी अमेरिका में मूवमेंट शुरू किया था, तो जो हिंदू लोग आए मंदिर में, उन्होंने देखा और देखा पूजा करते, अरे प्रभुपाद जी ये गलती किया, वो गलती किया. उन्होंने देखा कुछ गलती इधर उधर देखा, तो प्रभुपाद जी बोला चुप रहो. उसका भक्ति अच्छा है, वो सेवा करना चाहता है, वो मूल चीज ठीक है, बाकी ठीक है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया था. ऑटोमेटिकली स्लोली एडजस्ट हुआ. अभी जब कभी कभी इंस्टॉलेशन होता है या बड़ा यज्ञ होता है, इस्कॉन के लोग भी बहुत परफेक्टली वेद उच्चारण करते हैं आजकल, बहुत लोग सीख गए, करेक्ट. ये सब चीजें उपांग जो है, इट इज नाउ लर्न. बट द मेन थिंग is that he actually wants to serve Krishna and he has sincere desire to serve Krishna. That is primary. Srila Prabhupada ki, Srimad Bhagavatam ki. नरसिम्हा जयंती को जन्माष्टमी में, हाँ हाँ, कब जन्माष्टमी में या नरसिम्हा जयंती? नरसिम्हा जयंती. बहुत है कवच स्तोत्र, भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत दिए, क्योंकि मूवमेंट में शुरू से अटैक रहा है, प्रॉब्लम तो शुरू से रहा है. ये इतना टाइट कर दिया नहीं खुलता. मैं लूज किया था वो आफ्टर मैरिज के टाइम. ठंड के चाय